Hello students, welcome to Mathematics of Class 4. Today we start a new chapter, Chapter 12, How Heavy, How Light. This is the part 1 of this chapter. So student, here can you understand which chapter will start today? Heavy and light. That means in this chapter we will learn about the weight. When you carry the weight, that time you measure it. This is heavy or light. आप कुछ जब उठाते हो तो आपको पता चलता है कि दिस थिंग इज़ हैवी और लाइट. दैट मीन्स हियर यू आर मेजरिंग अबाउट द वेट. ओके, एंड वेट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ मेजरमेंट. Measurement are generally 3 types: length, weight and capacity. Okay, so we already learned the chapter of length, that is long and short. Okay, now in this chapter we will learn about the weight. So students, for weight, let's see, these are the standard units of weight. Which are the standard unit of weight? Gram and kilogram. यानी हमें कोई चीज़ मेज़र करनी होती है, सो फॉर डैट वी आर यूजिंग द ग्राम एंड किलोग्राम. ओके, सो फॉर ग्राम in the short form we write the G and kilogram in short form we write kg. Okay, आपने कभी कुछ बाज़ार से ख़रीदा होगा तो have you noticed that something is written on the weight कि this packet weight is this much gram, this packet weight this much gram, right? So solid object can be measured in gram and kilogram. Okay, or liquid we measured in liter and milliliter. Okay, but here in this chapter we talk about the weight. यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो वेट मेज़र करता है, यानी वो ग्राम और किलोग्राम में होगा. अंडरस्टूड? सो ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट एंड किलोग्राम इज द बिगर यूनिट. ओके, दैट मीन्स द लाइटर ऑब्जेक्ट वी मेजर्ड इन ग्राम एंड द हैवियर ऑब्जेक्ट वी मेजर्ड इन किलोग्राम. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड ग्राम से भी एक छोटा स्मॉलर यूनिट होता है, दैट इज़ अ मिलीग्राम. ओके, ग्राम से यानी जो कोई चीज़ एकदम लाइटर वेट होती है दैट वी विल मेजर्ड इन मिलीग्राम. ओके, एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. यानी जब 1000 ग्राम कंप्लीट होगा इट मेक्स अ 1 किलोग्राम. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? ग्राम और किलोग्राम में कौन सा स्मॉलर यूनिट है? ग्राम. यानी लाइटर ऑब्जेक्ट जब मेज़र करना हो, लाइक योर पेंसिल्स, eraser, sharpener, that can be measured in gram and kilogram. If you want to measure your bag weight, okay, so that should be measured in kilogram. That means lighter object measured in gram and heavier object measured in kilogram. Clear students? And in short form, how can you write it? If the G is written, that means is denoted a gram, and if the kg is written, is denoted a kilogram. And this is the standard unit of weight for kilogram. 1 kilogram is equal to 1000 gram. That has to keep in your mind. It's very important. Okay, now let's understand with an example. So student, here different objects are given that has to be measured in gram or kilogram. How can you know it? If I want to take the weight of this one mango, only मुझे one mango का weight जानना है. So the one mango weight should be in gram or kilogram. What do you say? क्या लगता है आपको? अगर एक मैंगो, ओनली वन मैंगो, दैट शुड बी इन ग्राम. ओके, अगर मुझे एक मैंगो का वेट जानना है तो वो 150 ग्राम या 200 ग्राम होगा. राइट नाउ दिस टाटा सॉल्ट, ओके, सो दिस इज द बैग ऑफ दिस सॉल्ट, सो दैट हैज़ टू बी मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम. आपको क्या लगता है? So this should be measured in kilogram because this is the heavier. आपने देखा होगा ना, मम्मी पापा घर पे लेके आए, you carry that one and then you will tell me. अगर आप वो उठाओगे आपको पता चलेगा it's little bit heavy. Okay, so this generally comes in 1 kg or 2 kg pack. Okay, so that measured in kilogram. Okay, have you eaten the chocolate dairy milk? खाया है ना आपने? Of course. Okay, so this is in gram or kilogram. So have you noticed that? In the chocolate backside or every object in this packet also backside the weight is written. उसके ऊपर weight लिखा होता है. राइट, तो अब से आप कोई भी चीज़ खरीदो, यू ऑब्जर्व द वेट कि हाउ मच इज़ द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस डेयरी मिल्क सिल्क, द वेट इज़ इन ग्राम और किलोग्राम. व्हाट डू यू से? इसका वेट इतना हैवी होता है? नो, इट्स अ लाइटर वेट. सो दिस डेयरी मिल्क इज इन gram. Okay, so now when you will eat this chocolate, you will tell me the weight of this chocolate. You can write the answer in comment box also. Okay, so what is the weight of this dairy milk silk?
you can write it. Okay students, let's see with the another example. See students, here different example given. So we talk about this one. This is a rice bag. This weight is in gram or kilogram? What do you say? This weight is in gram? No, because it's very heavier. So this is we measured in kilogram. Right students? तो आपको याद रखना है जो lighter weight होता है that we measured in gram and the heavier object we measured in kilogram. Right? Now the pen. Can you see this pen weight? Pen आपने उठाया, it's very light. Okay, so this pen weight is in gram. Okay, we measured in gram. Now this mobile phone. Now you are using mobiles a lot na, because you are watching the videos, you are writing your PDFs, okay, you are playing the games on mobile. So can you say it? The weight of the mobile is in gram or kilogram? It's a very heavy or lighter? वो light होता है या heavy होता है? Of course, now the mobile is a very lighter weight, right? So this any mobile weight is in gram. Clear? Not in kilogram. Clear students? Okay. So students, in this weight, how can we measure it? कैसे पता चलेगा कि this weight is in gram and this are in kilogram? How can we know that? We are having the units कि 1000 gram will make 1 kilogram. But how can we know it? कि this weight is in gram and this are in kilogram. Let's see. See students here, what is this? What are these students? These are the different weighing balance that we can understand the weight of an object. So if we want to know the weight, we have to put on it and we can know the object's weight, right? So these are the different type of weighing balance, right? So students, have you seen this weighing balance? How it works? ये कैसे works करता है पता है आपको? These are the two pens. It's go up and down. आपने देखा है वो up and down होते हैं. Whites go up and whites go down. Have you seen? कहाँ पे देखा है? So might be you have seen with the vegetable vendor, fruit seller, right? उनके पास देखा है ना? So what they are doing? They are putting this weight stone on one side, right? One side पे वो क्या रखते हैं? Weight stone, and another side they are putting the vegetable or fruits. Okay? In the grocery shop also you can see this kind of weighing balance. So how it works? Suppose I want to buy the banana, right? So I will put the bananas here and one side I will put the 1 kg weight because I want to buy 1 kg banana. So 1 kg weight, this kind of weight stone that will be put here 1 kg, and this here they would put the bananas. So if the weight stone is more than banana, so this will be go down, and the bananas are less, it will be go up. ओके यानी जिसका वेट ज़्यादा होता है वो वाला पेन नीचे जाता है और जिसका वेट कम होता है दैट विल बी गो अप. बट आई वांट टू बाय द 1 kg बनाना. सो व्हाट दे विल डू, व्हाट द सेलर विल डू, ही विल पुट 1 more or 2 more bananas and that both the pen should be equal. अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो सेलर क्या करता है, एक साइड वो वेट रखता है और दूसरी साइड ऑब्जेक्ट रखता है. तो जब तक वो ऑब्जेक्ट रखता है जब तक दोनों पेन इक्वल नहीं हो जाते. That means the banana's weight and the weight of this stone weight is equal. तभी हमें पता चलेगा कि जो बनाना रखे उसका वेट 1 kg है. क्लियर स्टूडेंट्स? यानी जब ये दोनों का ये जो दोनों पेन है वो इक्वल हो जाए दैट मीन्स बोथ द पेन्स वेट इज सेम. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया वो कैसे वर्क करता है? यानी जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा और जिसका वेट कम होगा वो ऊपर रहेगा. ओके और हम कैसे करते हैं, जहाँ पे अगर हमें दोनों का वेट सेम करना हो दैट मीन्स बोथ द साइड वी हैव टू पुट द इक्वल वेट. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? दिस इज ऑल्सो द वेइंग बैलेंस दैट यू कैन सी ऑन द फ्लोर मिल एंड द ग्रोसरी शॉप. ओके दिस इज ऑल्सो वेइंग बैलेंस. व्हाट इट मेजर, यू कैन मेजर योर बॉडी वेट ऑन इट. आप उसके ऊपर खड़े रख के अपना बॉडी का वेट मेजर कर सकते हो. ओके एंड दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट स्टोन. यहाँ पे 100 ग्राम का मिलेगा, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg. Okay, so these are the 200 gram, right? So these are the different types of weight stone. You can see the 5 kg also, 10 kg weight stone also. As per the required they are keeping with you. Okay, let's see others weighing scale. See here, these are also the weighing scale. This is the spring weighing scale. Here you have to attach the weight, that is this generally using the junk seller. नाउ दिस इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल. यहाँ पे भी वो लोग चीज़ रख के मेज़र कर देते हैं. ठीक है, समझ में आया? सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेइंग स्केल अवेलेबल इन द मार्केट.
okay, and they are using it. So whenever you go with the parents in the market or in any shop, you have to see it properly कि they are giving the proper weight or not. Okay, so that means proper weight कब मिलेगा? When both the side pains are equal. Understood, students? Okay, now students, let's start our chapter. Students, now you open the textbook page number 133. So, how heavy, how light? Jaiju and Mannu were shifting house. They loaded all their things on a horse cart. There were many things like a water tank, 5 sacks of wheat, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. So students, here you have to open the textbook and read along with me, right students? तो यहाँ पे जो जयजू एंड मन्नू है वो अपना हाउस शिफ्ट कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना ये जो भी मैंने अभी पढ़ा आपको कि वाटर टैंक है, सेक ऑफ राइस है, टेबल्स एंड ऑल दे आर लोडिंग इन दिस हॉर्स कार्ट. यहाँ पे वो रख के वो हाउस को शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज अर्लियर टाइम्स दे डोंट हैव एनी व्हीकल्स, दे कैन कैरी ऑल द लोड्स इन द ट्रक एंड ऑल दैट. Okay, now they are using the horse cart, so they loaded in the materials in the horse cart, right? Now when they were ready to move, the horse refused to start. यानी जब उन्होंने बोला कि चलो अभी हम इसको ले जाना है तो हॉर्स ने चलने से मना कर दिया, रिफ्यूज हो गया. So they wondered why. So their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. यानी जो हॉर्स है वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो वो 700 किलोग्राम से ज़्यादा जो ये लोड है वो कैरी नहीं कर सकता. ओह बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड, दे आस्क्ड. उन्होंने बोला कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो लोड है वो 700 kg से ज़्यादा है. ओके, सो नाउ यू टर्न द नेक्स्ट पेज 134. So students, here see, फादर गेव हिम सब आइडिया ऑफ वेट ऑफ ईच थिंग. फादर ने यहाँ पे आइडिया दिया कि देखो यहाँ पे जो सेक ऑफ व्हीट है उसका वेट कितना है 100 kg. ओके, राइस का वेट कितना है, राइस की बैग का 35 kg. सो हियर द ऑब्जेक्ट विच दे हैव लोडेड, हियर द वेट इज गिवन एंड दिस ऑल द वेट इज इन किलोग्राम. दैट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स आर हैवियर, राइट स्टूडेंट्स. तो आपने देखा किलोग्राम का भी यूज़ होता है बिकॉज हम जब भी ग्राम और वेट की बात करते हैं वी हैव टू राइट द ग्राम एंड किलोग्राम आफ्टर द नंबर, राइट. तो यहाँ पे तभी हमें पता चलेगा कि हम वेट की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो हैवियर है, दैट्स व्हाई इज रिटन इन किलोग्राम, राइट स्टूडेंट्स. नाउ सी हियर, सो हियर दिस आर ऑल्सो द वेइंग बैलेंस, दिस इज ऑल्सो वेइंग बैलेंस. सो इफ you want to put a weight in the heavy thing, so we can measure like this way, right students? अंडरस्टूड. मैंने आपको दिखाया वेइंग बैलेंस ऐसा भी होता है और वो कैसे वर्क करता है, डेट ऑल्सो एक्सप्लेन यू. ओके, सो यू मस्ट ऑल्सो ट्राई इफ़ यू आर हैविंग एट होम. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द नेक्स्ट पेज 135. Students, here I am not going to each and every line, I am explaining the things which are important, right students? So now our next topic is that here the pencil and the compass box is given, so that has to measured with your weighing balance. So you just imagine that if you don't have it, so if one side you are putting the pencil box and one side you are putting the pencil, so which side pen will go down, which pen will go down, right? So आपको पता चलेगा कि अगर एक साइड आप पेंसिल बॉक्स रखो एक साइड पेंसिल रखो तो कौन सा नीचे जाएगा, ऑफ कोर्स पेंसिल बॉक्स वाला, बिकॉज द पेंसिल बॉक्स इज हैवियर देन द पेंसिल, राइट. सो आपको फिर आइडिया आ गया कि जो हैवी होता है वो पेन नीचे होता है और जो लाइटर होता है वो पेन अप होता है. इट वर्क सेम लाइक एज सीसो. हमने अगले स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना कि सीसो कैसे वर्क करता है. आपने गार्डन में भी खेला होगा सीसो से. तो जो हैवियर साइड होती है वो नीचे रहती है और जो लाइटर होती है वो अप हो जाती है. बोथ द साइड इक्वल, सो इट्स एन इक्वल पोजिशन, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट टू डू इन दिस एक्सरसाइज, व्हाट इज द हैवीएस्ट. Students, here you have to take any 3 objects and then you have to write like this way, lightest, in between weight and the heaviest. यानी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए, पेपर, इरेजर एंड बॉल. तो इनमें से पेपर, इरेजर और बॉल में से सबसे लाइटेस्ट क्या है, पेपर. उसके बाद थोड़ा जो वेट है वो किसका है, इरेजर का. और इन तीनों में जो हैवीएस्ट है वो क्या है, बॉल. ओके, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी 3 थिंग्स लेनी है एंड दैट यू टू अरेंज लाइक दिस वे, lightest, then heavier and then heaviest, right.
तो ऐसे फॉर्म में आपको अरेंज करना है. आई विल गिव यू इन वन एग्जाम्पल. इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक स्पून, स्टील स्पून एंड टेबल. ओके, तो हम इनको तीनों को अरेंज करना होगा. हाउ वी कैन डू इट? सो अगर मैं बोलूँगी तो प्लास्टिक स्पून इज़ द लाइटेस्ट वन आउट ऑफ दिस थ्री. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक स्पून, स्टील स्पून एंड टेबल. सो इन तीनों में से सबसे लाइटेस्ट क्या है? प्लास्टिक स्पून. दैट आई विल राइट इन दिस फर्स्ट कॉलम. राइट. इन द सेकेंड कॉलम, which is the heavier than plastic spoon, that is the steel spoon, that I will write in the middle column. Okay, and the which is the what heaviest, that is the table, so I will write in the third column. Clear? So आपको ऐसी कोई भी तीन चीज़ें लेके ये टेबल को कंप्लीट करना है. ओके, अंडरस्टूड दिस? हाउ टू कंप्लीट दिस? सो आपको कोई भी तीन चीज़ ले सकते हो और उसको लाइटेस्ट, हैवियर एंड हैवीएस्ट वेट में आपको लिखना है. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. 137. Open it. So here this is the practice time is given students. यहाँ पे आपको क्या करना है? Which pen of the balance will go down? Show by drawing an arrow. तो यहाँ पे आपको weighing balance दिया है, उसमें से कौन सा पेन नीचे जाएगा उसके नीचे एरो दिखानी है. स्टूडेंट्स तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे वेट लिखिए, राइट, 25 ग्राम एंड 40 ग्राम, और यहाँ लिखा है 35 ग्राम एंड 40 ग्राम. सो स्टूडेंट्स कैसे मेज़र करोगे आप? तो यहाँ पे आप एडिशन करोगे. 25 प्लस 40 कितना होता है? 65 ग्राम. और 35 प्लस 40 कितना होता है? 75 ग्राम. सो ऑफकोर्स ये 65 से कंपेयर में 75 हैवी होता है, तो डी वाला पेन है जो नीचे जाएगा. देखा आपने, नीचे जाए उसके लिए एरो करना है. लेट्स सी द सेकेंड वन स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे लिखा है 75 ग्राम एंड 75 ग्राम. 75 प्लस 75 कितना होगा स्टूडेंट्स? 150 ग्राम. यानी ये वाले जो पेन है उसका वेट 150 ग्राम है. नाउ लेट्स चेक इट आउट दिस वन. 35 ग्राम एंड 140 ग्राम, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 175 ग्राम हो जाएगा. सो 150 ग्राम के कंपेयर में 175 ग्राम हैवियर है, तो वो वाला पेन नीचे जाएगा. तो स्टूडेंट्स आपको उसके नीचे यहाँ पे ऐसे करके एरो बनानी है. क्लियर? समझ में आ गया? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स. यहाँ पे दिया है 105 ग्राम एंड 200 ग्राम. ओके, सो दिस विल बी एन 305 ग्राम. हियर गिवन 150 ग्राम एंड 250 ग्राम. तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 250 ग्राम प्लस 150 ग्राम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 400 ग्राम. सो ऑफकोर्स ये 400 ग्राम वाला हैवियर है, सो उसके नीचे भी आपको ऐसे करके एरो बनानी है. क्लियर? सो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो आपको ये जो 2 एक्सरसाइज है, बाकी की 3 एक्सरसाइज है, वो अपने आप करनी है. तो आपका टोटल करना है दोनों पेन का, और उसमें से किसका कौन से नंबर बड़ा है, दैट मीन्स दैट पेन विल गो डाउन. सो दोनों इसका टोटल करो, देन यू हैव टू डू द टोटल एंड देन यू हैव टू कंपेयर इट विच नंबर इज ग्रेटर देन दैट पेन विल बी गो डाउन. Okay students, and one more thing has to check it. Is the weight of any pen equal to 1 किलोग्राम? मार्क इट. यानी आपको यहाँ पे जो कोई ऐसा पेन है जिसका वेट 1 किलोग्राम होता हो, तो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम? दैट मीन्स 1000 ग्राम विल मेक 1 किलोग्राम. यानी जिसका वेट 1000 ग्राम होगा वो 1 किलोग्राम बनाएगा. राइट. तो आपको टोटल करने के बाद ही पता चलेगा. तो ये 3 जो है मैंने होमवर्क में दिए हैं, आप एडिशन करके चेक करोगे, और जिसका वेट 1000 ग्राम होगा वहाँ पे आप क्या करोगे? टिक करोगे. राइट. क्लियर स्टूडेंट्स? 1 किलोग्राम मीन्स वॉट? 1000 ग्राम, बिकॉज हियर ऑल द वेट्स आर गिवन इन द ग्राम्स, नो वन इज गिवन इन किलोग्राम. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज योर होमवर्क दैट हैज़ टू डू एट होम. ओके. So now you open the page number 138. Students, see here, gram and kilograms. Name 5 things that we usually buy. तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि ग्राम और किलोग्राम में जो हम जनरली खरीदते हैं वो लिखना है. सो आपको पता होगा कि ग्राम में हम कौन सी चीज़ खरीदते हैं? लाइटर वेट वाली. एंड किलोग्राम में हैवियर. ओके. तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो जो हम ग्राम में बाय करते हो. ओके. जैसे हम लिख सकते हैं व्हाट वी कैन राइट इट स्टूडेंट्स. क्या लिख सकते हो आप? क्या क्या बाय करते हो ग्राम में? सो वी कैन से वी कैन बाय अ मस्टर्ड सीड. आप मस्टर्ड सीड बाय करते हो ना. दैन टी लीव्स. ओके. दैन मिंट, ब्लैक पेपर. ओके. ये आप अपने मम्मी से पूछ के भी आप ये फिलअप कर सकते हो. ठीक है. जो हम ग्राम में बाय करते हैं. किलोग्राम यानी जो हैवियर होती है, जैसे कि हम राइस है, वीट है, दाल, ओके, शुगर, ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो, दे जनरली बाय इन किलोग्राम.
ओके, सो दैट नेम हैज़ टू राइट इन दिस कॉलम. किलोग्राम वाले में हैवी वेट वाले लिखने हैं और ग्राम वाले में लाइटर वेट वाले ऑब्जेक्ट लिखने हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ईजी है ना. सो दिस ऑल आर द होमवर्क, दिस आर द एक्टिविटी विच हैज़ टू डू बाय ओन. ओके, तो आपको पता चलेगा कि ग्राम में कौन सा आएगा और किलोग्राम में कौन सा आएगा. राइट स्टूडेंट्स? नाउ हियर वन ऑफ द टॉपिक इज गिवन विच इज़ हैवियर. सो 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन. अगर हम कंपेयर करें कि 1 किलोग्राम कॉटन हैवी या 1 किलोग्राम आयरन, तो हम दोनों का वेट तो इक्वल है, 1 किलोग्राम ही है. बट कौन सा हैवियर है? कॉटन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड आयरन इज़ वेरी हार्ड. ओके, सो दोनों इक्वल है. ओके, बट सॉफ्ट और हार्ड में डिफरेंट है. वेट तो दोनों का 1 किलोग्राम ही है. सो सर, आई थ्रो हैवी वाटरमेलन टू मी. So here through 1 kilogram peel of cotton. So I threw a 1 kg watermelon. Yesterday you said that the weight of 1 kg cotton and 1 kg melon is equal. So उसने क्या किया, ये जो बॉय है उसने 1 kg का पीलो मारा और ये गर्ल ने क्या किया, 1 kg का वाटरमेलन मारा उसको. ओके, क्योंकि दोनों का वेट तो इक्वल ही है ना. तो what the girl said, yesterday you said that the weight of 1 kg cotton and 1 kg melon is equal. आपने तो कल बताया था कि दोनों 1 kg इक्वल है. तो बट स्टूडेंट्स, हियर वेट आर इक्वल बट द watermelon is hard and the cotton is soft. Okay, so difference are there, weight is equal. So अगर वो हम watermelon मारेंगे तो उसको लगेगा. If I throw the 1 kg cotton pillow, so it's very lighter weight, so it will, you can't hurt it. Clear students? समझ में आ रहा है? Okay students, let's see the next one. Here students, this page we will see you in the next video. So students, I hope you have understood the topics of heavy and light. Okay, and what with the exercise which I explain you, that has to complete in your textbook also. Clear students? So do your best, do your own activity, and you can make your own weighing balance also with the help of string and stick. Okay, thank you students.